تھینک یو. چیئرمین صاحب سے بھی ہے کریں گے، لیکن یہ جب تک ہم ایز اے کلیکٹیو ٹیم ورک ہم نہ کریں تو میرے خیال سے ریزولوشن دے دینا یا وہ وہاں پہ جا کے ٹکی رسمی کرا دینا اور ہارڈ ایموجیز گروپ میں دے دینا اس سے بہتر ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ہمارے سینئرز یہاں سے موجود ہیں زندگی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں وہ اپنے خیالات کریں. یہاں میرے خود ہم سب کی جو ہوئی ہے ہم نے سیمینار اپوائنٹمنٹس کے اوپر بڑا اچھا یہ سیمینار ہے، لیکن اس میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نیو امینڈمنٹس آئی ہیں مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں جو لا امینڈمنٹ ایکٹ 2024 آیا ہے اس میں جو چینجز آئی ہیں اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو ایپلیٹ ہو رہا اس پر میں اپنا دو تین بات کے سامنے رکھ سکوں. جب بھی لا میں جو بھی امینڈمنٹس آتی ہیں تو دو طرح کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ایک پروسیجرل ان نیچر ہوتی ہے اور ایک سبسٹانٹیو ان نیچر. سیٹل لا ہے کہ پروسیجرل امینڈمنٹ جو ہے وہ آلویز ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے انلیس ادروائز اسپیسیفائڈ، اور جو سبسٹانٹیو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پرسپیکٹیو ہوتی ہیں. لانگ جوریسڈکشن پر آئی ہے اور وہ مینٹینیبل نہیں ہے ٹربل. اور میں نے اپنی پریزنٹیشن میں وہ تینوں ججمنٹس کا جسٹ بھی دیا ہے. جن تین ججمنٹ پر رلائی کر کے انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے وہ ٹوٹلی irrelevant ججمنٹ. First before commissioner and second appeal was before tribunal. ایک رائٹ کا تفویض ختم کیا گیا ہے اور اس کے اگینسٹ ڈائریکٹ ریفرنس کر دیا گیا ہائی کورٹ میں. سو یہ امینڈمنٹ اس کو کسی صورت میں بھی آپ پروسیجر امینڈمنٹ نہیں کہیں گے. جس پہ کہا گیا کہ سیل ٹیکس میں 10 ملین تک، انکم ٹیکس میں 20 ملین تک اور فیڈرل ایکسائز میں 5 ملین تک کی اپیل جو ہے وہ کمشنر کے پاس ہے. اب کچھ سوال ابھی میرے ساتھ یہاں پوسٹ کر رہے تھے کہ اس سے 10 ملین اور 5 ملین اور 20 ملین سے کیا مراد ہے. اس سے مراد ہے ٹیکس ڈیمانڈ کریٹڈ، کہ جو ڈیمانڈ نوٹس آپ کو سرو ہوگا، جو آرڈر سرو ہوگا، اس میں جو ٹیکس ڈیمانڈ کریٹ کی گئی ہے وہ اگر 5 ملین فیڈرل ایکسائز کی صورت میں، 10 ملین سیل ٹیکس کی صورت میں اور 20 ملین انکم ٹیکس کی صورت میں ہوگی تو اس صورت اس کی اپیل جو ہے وہ کمشنر کے پاس ہے. یہ ایک میجر چینج آئی ہے اس میں. پہلے آپ کو پتا ہے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز میں اپیلس کی لمیٹیشن فرسٹ اپیل کی 30 ڈیز ہوتی تھی تینوں لا، سیکنڈ اپیل کی لمیٹیشن 60 دن ہوتی تھی اور ریفرنس کی لمیٹیشن 90 دن. اب تینوں اسٹیج پر لمیٹیشن کو کرٹیل کر کے 30 ڈیز کا ایکول ٹو دوسرا اپیل جو پہلے ہوتی تھی وہ 30 ڈیز پر آ گئی ہیں تینوں 30 ڈیز فرام ریسیٹ آف آرڈر. ٹیکس پیئر خود اپنی بلنگ شو کرے گا ADRC کی تو اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ ADRC میں جائے، اور اگر وہ ریفیوز کرتا ہے کہ نہیں میں نے ہیئرنگ کروانی ہے اپیل کی تو اس صورت میں پھر ٹربیونل اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے بھیجے تو ڈپارٹمنٹ کا ریفرنس فائل ہو سکے گا، ادروائز نہیں ہو سکے گا. بات ہے کہ اگر ہم نے ڈیورنگ اپیل بیفور کمشنر یا بیفور ٹرائبونل کوئی ڈاکومنٹیشن کی ہے، کوئی فردر ڈاکومنٹیشن کی ہے، وہاں کوئی ریٹن آرگومنٹ دی ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹ سبمٹ کی ہے تو ان کی سبمیشن آفٹر فائلنگ آف ریفرنس ود ان 15 ڈیز وہ سارے ڈاکومنٹس بھی ہائی کورٹ میں سبمٹ کرنے ضروری کر دیں. جو ریسنٹ آرڈر کرنے کا بینچ 1 کا ہے، یہ تینوں کی تینوں ججمنٹس جو ہیں یہ ہے پرٹیکولرلی جوریسڈکشن سول لاس میں جو چینجز آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، اسلام آباد میں بھی مختلف اوقات میں مختلف جوریسڈکشن ہوتی تھی. کئی جگہ فرسٹ اپیل لائی کرتی تھی بیفور ہائی کورٹ. روپے کی فرض کیا 10 ملین کی ڈگری ہے تو اس صورت میں اپیل کہاں جانی ہے، 20 ملین کی ڈگری ہے تو کہاں جانی. تو وہ جو چینجز ہوتی رہی وہاں یہ تینوں ججمنٹ اس سے لنک کرتے ہیں. ان ججمنٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ کیونکہ صرف لمیٹیشن کی چینج آئی ہے، اس پہ کوئی سبسٹانٹیو رائٹ کسی کا افیکٹ نہیں ہو رہا، صرف فورم چینج ہو رہا ہے.
کہ وہ اپیل جانی تھی سیشن جج کے پاس، اس کی جگہ کر دیا گیا ہائی کورٹ یا ہائی پر، کہ جہاں سبسٹانٹیو رائٹ انوالو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ پروسپیکٹیو افیکٹ ہے. اس پر میں نے کافی ججمنٹس نکالی ہیں. ججمنٹ ہے 2022 SCMR 1333 CIR ورسز سرور ٹریڈرز، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 45. اچھا اس میں دو طرح کی میں نے ججمنٹس دی ہیں، ایک لمیٹیشن کے حوالے سے، ویسٹڈ رائٹ کے حوالے سے. یہ ویسٹڈ رائٹ کے حوالے سے ہے پہلی ججمنٹ 2009 PPT 1392 ایلی لیلی پاکستان، مشہور زمانہ ججمنٹ ہے. 2011 PPT 1558 شاہنواز لمیٹڈ والا کیس ہے. 1993 SCMR 1905. اس طرح اور کافی ججمنٹس ہیں اس میں 11-12 ججمنٹ. ان ساری ریکویسٹ ہوگی چیئرمین صاحب سے کہ کیونکہ ججمنٹ آ گئی ہے تو میرا خیال ہے اس پر لارجر بینچ بنانا پڑے گا آپ کو، یا اگر ایڈمنسٹریٹولی آپ ٹیک اپ کر کے کر سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ بینچ بنا دیں ہم بینچ میں آ کے اسسٹ کر دیں گے. بینچ میں لیگلی اسپیکنگ ڈیٹ جو ہے وہ 3 مئی بنتی ہے کیونکہ پاس ہو گیا تھا ایکٹ 3 مئی. سو 3 مئی آن ورڈ اگر سروس ہوئی ہے آرڈر کی وہاں تو ریفرنس لائی ہوگی اور فریش اپیل جتنی فائل ہوگی ودن 90 ڈیز ڈیسائڈ کرے گا. جو پرانی 16 جون سے کمیشن اپیل سے آپ کے پاس ٹرانسفر ہو کر آئیں گی وہ 180 دن میں آپ نے ڈیسائڈ کرنی. اور اگر اس پرسکرائب پیریڈ میں ڈیسائڈ نہیں ہوتی تو منسٹری آف لا سے انہیں ایکسٹینشن لینی پڑے گی. وہ ایکسٹینشن بھی 90 ڈیز کی میکسیمم ہے، جس میں کہا گیا کہ ایپلیٹ جوریسڈکشن کی جو لمیٹیشن ہوتی ہے یہ ہمیشہ ڈیکلیریٹری، یہ مینڈیٹری نہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ یہ سارا کچھ کر کے ساتھ ایکسٹینشن کا بھی لگایا اور اس ایکٹ کو لانے کے لیے مقصد یہی ہے کہ ایک پرسکرائب لمٹ کے اندر اپیلیں ڈیسائیڈ ہوں. ایسا نہیں ہوتا اپیل اسٹینڈ ڈسمس، وہ غلط تھا. حالانکہ وہاں ہونا چاہیے تھا کہ اپیل ڈیم ٹو ہیو بین ایکسیپٹڈ. نارملی جہاں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیکشن 221 ریکٹیفیکیشن کی وہاں لمٹ ہے کہ 1 سال کے اندر ریکٹیفیکیشن آرڈر پاس کرنا ہے. اگر ود 1 ایئر نہیں ہوتا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیم ٹو ہیو بین ایکسیپٹڈ. اب جو فائنل ایکٹ آیا اس میں وہ ڈسمسل والی تو پروویژن ختم کر دی لیکن ایکسیپٹنس والی پرووائزو نہیں ڈالی. تو اب مطلب ایک عجیب سی صورتحال انہوں نے بنا دی ہے کہ لمیٹیشن تو ڈال دی ہے، اس کو شیل کے ایشو پر اسٹے ہوئے ہیں تو 11 سال سے وہ اسٹے چل رہا ہے. حالانکہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ 180 ڈیز سے زیادہ ہائی کورٹ کا اسٹے نہیں چلتا. تو یہ تو لا موجود ہے لیکن یہ جو پرپز مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایکٹ لانے کا جو مقصد. FBR یوزلی ممبرس ہماری تقریبات پہ کم آتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بجٹ کی شدید خصوصیت ہے. آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ بجٹ کے دنوں میں یہ لوگ ملتے نہیں ہیں، ان سے ملنے پہ بھی وہ نہیں. لیکن عزیز صاحب جس طرح آپ کے جو ہے نا اس ایکٹ پہ آبزرویشنز ہیں ان کے ویلڈ آبزرویشنز ہیں، ان آبزرویشنز میں خود بھی شریک ہوں. میں نے 2 مئی کو جوائن کیا تھا اور اس کے نیکسٹ ڈے ہی جو ہے نا یہ ایکٹ ہو گیا. جی بالکل. یہ جو مین ایک ایشو ہے نا جس کو انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ یہ ابھی لیٹسٹ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے 50,000 روپی کاسٹ کا اور اس میں لفظ بھی اینڈ کا اور مینڈیٹری کریں گے. تو وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کل رات کو میں چیئرمین کے ساتھ بیٹھا ہوں تو تقریباً 8:30 کوئی اس طرح تھے. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ سر یہ تو صرف جو ہے نا ٹیکس پیئر پہ نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ پہ بھی پڑ رہا ہے کیونکہ اس میں اس طرح کوئی تخصیص نہیں ہے جی، اور یہ لمیٹیشن وغیرہ کے مسائل ہمارے بھی ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا میں نے کہا کہ سر یہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ یہ BR کہاں سے ادا کرے گا، اس کے پاس نہ کوئی ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے اور پھر جو ہے نا ہم اس کو شاید رجسٹ بھی کریں کہ نہیں یہ آپ پہ پڑ دے یا آپ کا پرسنل ہے تو BR بھی کوئی جو ہے نا دے ول آل رن اوے. تو اس طرح کے مسائل آئی ایڈمٹ کیے بالکل ہیں. میں جو ہے نا جو جاب ڈسکرپشن ہے ممبر لیگل ٹیکس بار کی طرف سے اس کو میں جو ہے نا فارورڈ کر سکتا ہوں ود مائی کیا اسے کہیں گے کہ کنسیڈریشن کی اس کو پھر بے شک اسی طرح ہے. تو بہت بہت شکریہ. توجہ نہیں دی جائے گی تو کتنا نقصان ہوگا اور کن کن کا نقصان ہوگا وہ اندازہ کریں.
وہ ہیں جہاں فورم چینج ہوا ہے. وہاں یہ تھے کہ اپیل انسٹیڈ آف فائلنگ بیفور ہائی کورٹ وہ چلا گئی سیشن کے پاس, یا سیشن تھی تو ہائی کورٹ پہ چلی گئی. وہاں کوئی اپیل کا اسسمنٹ تو انہوں نے کہا کلاک ٹک ٹک کرنا شروع ہو گیا. اگر وہ ہو گیا تو سینٹر میں آ کے آپ اس کو نہیں روک سکتے. مینشن کرتی ہے اسٹیٹ ٹیکس میں کمپنی کیس میں 5,000, ادر کیسز میں 500 روپے, انکم ٹیکس میں کمپنی کیس میں 5,000, ادر میں 1,000, اور فیڈرل سائڈ میں بھی ان کیس آف کمپنی 5,000 اور ادر کیسز میں 2,500. چینج آئی ہے ATI آتا ہے. وہاں ہو گیا ہے کہ ان کیس آف کمپنی 25,000 ہو گیا اور اب وہ ہوئی 50,000. اور یہ وہی بات ممبر صاحب کی کہ اسٹے تھا فرسٹ اپیل کیا 45B میں جمع کرتے تھے تو سیکشن 48 میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 10% آپ ٹیکس جمع کرا دیں تو ریمیننگ 90% کا ٹل دا ریسیون آف اپیل اسٹے ہو جاتا ہے. سیکشن 46 کو بھی ایڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریبونل اور کمشنر اپیل کے پاس سے فیصلہ اس کی فیور میں آ جاتا ہے. تو یہ اربوں روپے جو ٹیکس جمع کرانا ہے وہ کہاں سے ریفنڈ لیتے ہیں؟ ریفنڈ لینا آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ریفنڈ واپس لینا ہے کتنی مشکل کام ہے. تو یہ بہرحال یہ چیز چیلنج ہو. اسٹیٹ پر 15% مینڈیٹری پیمنٹ آتی تھی, تو اس مینڈیٹری پیمنٹ کو میں نے چیلنج کیا تھا. میں نے اپیل فائل کر دی. کمشنر اپیل نے آبجیکشن کیا کہ جی آپ کی اپیل مینٹینبل نہیں, انٹرٹین نہیں ہوگی جب تک 15% جمع نہیں کریں. تو آئی ہیو چیلنج دیٹ کنڈیشن لے ڈاؤن بائی دا لا. تو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی میری ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹ ہے, روکا جاتا ہے. فائلنگ کا ریفرنس کے لیے یہ کنڈیشن نہیں, یہ اگلی کنڈیشن ہے کہ آپ نے ٹیکس, کیونکہ آپ کا ایک سٹیج پر ایڈجوڈیکیٹ ہو چکا آپ کے خلاف, ہو بلکہ 2 سٹیج ہو چکے, ایک اسسمنٹ سٹیج اور اپیل سٹیج, تو 2 سٹیجز پر آپ کے اگینسٹ فیصلہ ہو چکا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ ریونیو کو اسٹاک کرنا تو 30% دے گا. بہرحال اس پر وہ میری ججمنٹ آلریڈی یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, مولوی معاویہ صاحب کی ججمنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلامک لا کے ہی خلاف کہ رائٹ آف اپیل پر آپ کوئی شرط لگا. بات وہ سو موٹو افیکٹ نہیں ہوتا انلیس کورٹ وڈرا نہ کرے. اس پر بھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے بلیال صاحب کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 180 days کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ افیکٹو اس وقت ہوگا جب کورٹ کہے گی کہ 180 days کے بعد وڈرا. اگر کورٹ خود ہی نہیں ڈیسائڈ کر رہی اپیل تو اسٹیٹ بھی بائی دا کمشنر, اس میں بھی یہی ایلیمنٹ ساری جو ہے وہ آ گئی ہے. تو سیکنڈ جو ایک اچھی امینڈمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے 122B. 122B کی جو رول 218 کی اپیل تھی, یا 122 میں ہم جو ریویژن کرتے تھے چیف کمشنر کے پاس, اس کے خلاف پہلے کوئی اپیل نہیں. تو ان کیس آف ریجیکشن آف ریویژن آر اپیل, اور 218 کی اپیل ہے, اور اگر 122B میں ڈائریکٹ ریویژن, تو اس صورت میں ریجیکشن کے بعد ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں ریٹ میں جانا پڑتا ہے. اب وہ آرڈر اپیلیبل ہو گیا بفور ٹرائبونل. دیٹ از جو آرڈر بھی ہیں وہ بھی, جس میں خاص طور پر کیونکہ سیکشن 131-32 متعدد جو اپلائی ہوتا ہے سیل ٹیکس میں بھی جو فیڈرل ایکسائز میں, کیونکہ اس کے لیے ٹرائبونل کی پروویژن ایگزاسٹو نہیں, تو انہوں نے یہ دونوں پروویژن اپلائی کی. تو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ تھا کہ جو سیلنگ آرڈر کرتا تھا چیف آتے تھے اور پھر ڈی سیل کرتے تھے, اس کے خلاف ڈائریکٹ ریٹ بنتی تھی, اپیل نہیں ہوتی تھی. تو اب چیف کمشنر کا وہ آرڈر بھی اپیلیبل ہو گیا ہے بفور 5 لاکھ روپے پینلٹی جمع کرانے کا, وہ آرڈر اپیلیبل نہیں تھا, اب وہ بھی اپیلیبل ہو گیا کیونکہ چیف منسٹر کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ اپیلیبل ہو گیا بفور ممبر اپوائنٹ ہوئے ہیں, اپنی اسی کے مطابق اپنی ٹرم پوری کریں گے. وہ کہا جوڈیشل ممبر ہے, اکاؤنٹنٹ ممبر ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ جوڈیشل ممبر اکاؤنٹنٹ ممبر کا کنسیپٹ ختم ہو گیا, ممبرس کرائے گئے. جو موجودہ ہیں ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اپوائنٹمنٹ کی اور باقی تمام ایز اٹ از رہے. نئی فریش اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میجر چینج آ گئی. ABCDEF 5 کیٹیگری بنا دی, ساری کی ساری چینج ہو گئی. لائرس کی آگے اسٹینڈنگ تھی 10 سال, اس کو 15 سال کر دیا. چارٹر اکاؤنٹنٹ اور ICM میں نئے سرے انسرٹ ہو گئے ہیں, پہلے ختم ہو گئے تھے. اور کمشنر اپیل اور
दूसरे कमिश्नर जो बोर्ड से आने हैं उनका वो सारा करते हैं। और टर्म डिटर्मन हो गई है चेयरमैन 3 साल की अब टर्म होगी विच में बी एक्सटेंडेड फर्दर भी एक्सटेंड हो सकती है और पहले भी खत्म हो सकती है। और चेयरमैन जो अपॉइंट होंगे वो पहली कैटेगरी A-B-C में से होंगे, D-E में से नहीं। जो पहले भी यही था कि अकाउंटेंट मेंबर चेयरमैन नहीं होते थे एक्सेप्ट वो अपना हमारे टर्म मुतय्यन हो गई 3 साल चेयरमैन। और रिटायरमेंट एज जो है ABC की वो 62 साल कर दी गई। जो EF वाले होंगे वो अपनी ही टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक आए हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो बनाए हैं। अगर इन रूल्स को देखा जाए तो इसके मुताबिक फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए सैलरी पैकेज सारे का सारा चेंज हो गया, इक्वल टू हाई कोर्ट जज हो गया मेंबर का, उसकी सैलरी अलाउंसेस पर गुजरे और चेयरमैन का हो गया इक्वल टू चीफ जस्टिस लाहौर का, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसके एतबार हो गया। अब ये बहुत बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो तो अपनी पुरानी टर्म एंड कंडीशन पर चलेंगे और जो नए हैं वो इसके मुताबिक चलेंगे, वो ज़मीन आसमान का फर्क है। तो इस प्रोविजन पर इस इशू पर ये डेफिनेटली प्रोविजन चैलेंज होगी कि बहुत बड़ी जाती होगी कि एक ही फोरम में बैठे हुए 2 मेंबर की पर का ज़मीन आसमान का फर्क, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन डाल दी है जो कि मेरा ख्याल है किसी भी एपलेट फोरम में काम करने के लिए इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन के साथ बेंच को चलाना और उस इदारे को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये प्रोविजन मुझे नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली चैलेंज होगी कि इसको मिला के पढ़ेंगे 131-25 को, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है जो कि पता नहीं किस तरह होगी इस साथ चलते। स्टेट ऑन एंटिटीज, ये भी प्रोविजन स्टेट वे चैलेंज हो जाती है क्योंकि इनका राइट ऑफ अपील सारा ही खत्म कर एक्सेप्ट 134(11) के अलावा अगर कमेटी टूट जाती है तो वो अपील में जाएंगे, वरना इनका राइट ऑफ अपील खत्म हो गया। इन्होंने हर सूरत जाना ही ADRC लिमिट ठीक है 100 मिलियन से उन्होंने 50 मिलियन पर लिया है फिगर, ADRC में फैसला करेगा उसका कि अच्छा नहीं अब ये करते हैं तो पहले भी लगाया है क्यों टैक्स। पता नहीं ये लॉजिक हमें वैसे भी नहीं समझ आती कि बजट तो वही है ना, अगर NHA का टैक्स आपने लगा दिया, SCCP पर लगा दिया, प्रोविजन में डाल दिया है 133 में कि अब हाई कोर्ट तमाम स्पेशल टैक्स बेंचेस बनाएंगे और वो स्पेशल टैक्स बेंचेस जो है वो टैक्स केसेस सुनेंगे, जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा हाई कोर्ट्स के लिए। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई स्पेशल टैक्स बेंच नहीं है, और तो किसी वक्त चलता है एक बेंच के उसमें ज़्यादा वो मतलब एक बेंच की रिवाइज बना के वो चल पड़ता है, लेकिन अमलन अगर देखा जाए तो हर बेंच में अब इसमें इन्होंने ये डाल दिया है कि इसके लिए वो पूरा एक मैकेनिज्म बनाएंगे, स्पेशल बेंचेस आएंगे, वही हेयरिंग कर सकते हैं, प्रोविजन डाल दी है। अब ये देखें हाई कोर्ट लेवल पर इस पर क्या होता है, हाई कोर्ट किस तरह इसको मैनेज करता है, स्पेशली बनते हैं नहीं बनते हैं, या क्योंकि अब वो छोटी बिलें हो गई इसलिए उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन 12-13 जजमेंट जिसमें कहा गया है कि जब भी अपील का फैसला हो, पहली अपील का फैसला हो, सेकंड अपील का फैसला हो, हर एक के बाद 30 डेज टाइम देना मैंडेटरी एज द केस में बी कॉमा आर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब 131 में कमिश्नर अपील का जिक्र और 131 में रेफरेंस के जिक्र की तो तुम नहीं समझ आती। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। चले ठीक है, मतलब ये मैं एक समझता हूँ कि इकोनॉमी नंबर 1। नंबर 2 7 जो है 133, बल्कि इसमें 2-3 जगह 133 का जो फर्स्ट प्रोवाइडो है उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट शैल आल्सो फाइल द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेंट टर्मिनल विद इन 15 डेज। अब वहाँ CIR अपील मिसिंग है, बिल्कुल ठीक है। इसकी सबसेक्शन 2 the statement to High Court referred to in subsection 1 shall set out the facts and determination of the appellate tribunal, no mention of CIR appeal, जबकि वो भी होना चाहिए, ये भी एक अनोमली है। तो लिखा है यहाँ भी CIR अपील मिसिंग है, तो ये वो सारी चीजें जो हाईलाइट कर दी जाए ताकि ये जो एक्ट आ रहा है उसमें ये चेंजेस आ जाएंगे, जो कवर हो जाए सारे। That is still missing.
origin is a bad assessment order. That bad assessment order is what the High Court is working upon. That assessment order is what the lawyers are working upon. आपकी सारी litigation machinery जो है, you are the main part of that litigation machinery. क्योंकि tax payers जो है उनके knowledge नहीं होता, उन्हें कारोबार करना है, business करना है. Then they go for an expert on that field. The battle goes on. अब थोड़ा सा अगर उसको एक और ट्रैक पे चले जाएं, एक पैरेलल ट्रैक कह लें. Figures speak the loudest. Numbers when इंसान जब वो कहते हैं ना बिलियन, तो डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर में लिखता है ह्यूज डिमांड. तो जब ह्यूज है, व्हाट इज इट? इज इट गुड? इज इट बैड? Best says having big income is a good thing. Billionaires मुल्क में होना is a good thing. हमारे मुल्क में की scarcity thought है हमारी, हम समझते हैं कि अमीर आदमी जो है वो पता नहीं टैक्स चोरी की वजह से अमीर बना है. Impose tax हो जाता है, the journey starts. और उसके अंदर बैलेंस करने के adjournments हुआ क्या? जो मुझे जो लगता है, I might be wrong, वो ये कि हमारी collectible demand based upon assessment orders वो stagnant थी for many years, and that was piling up rather than ticking down. वो तो गवर्नमेंट जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस होते हैं, न्यूमरस डिसीजंस गवर्नमेंट कर रही होती है, और वो जाकर इट इज कह लेके न्यूज़पेपर्स इस रिपोर्ट भी आई कि अगर इसका आधा भी जमा हो जाए, लेकिन आधा भी एक रीजनेबल बंदा समझे कि यार आधा तो जमा हो सकता है, लेकिन दैट इज हाईली कंटेस्टेड, डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना, कंटेस्ट अमाउंट. बट इन द एफटीआर फिगर इट इज रिफ्लेक्टेड एज समथिंग कलेक्टेबल. यहाँ ये गवर्नमेंट का एक अमाउंट पड़ा हुआ है किसी जगह पे, which the government can recoup. Then the thing built up कि ये पैसा कहाँ पे है. एक दिन होता था कि ट्रिब्यूनल के स्टेज के अंदर है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में. So this act which has come to हम सब इकट्ठे हैं और एनफोर्स भी हो चुका है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है ना, उसका रेफरेंस से देखा गया है कि एरिया इज वन ऑप्शन. स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के उनकी टीम खुद अच्छी टीम्स होती हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनके जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो भी एक कैरियर जर्नी, और सभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेट की ही होती है उनकी वर्किंग. तो why not sit across the table and go resolve हो जाए, तो अमाउंट कुछ आ जाए. दूसरा ये था कि जैसे आप साहब कह रहे थे कि स्टेट की ही एक पॉकेट से निकाल के स्टेट की दूसरी पॉकेट में जा रहा है, तो वो भी था कि ऑर्डिनेंस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहां पे शायद कामयाब हो जाए. अब नेक्स्ट था कि कमिश्नर अपील क्या कर रहा है. They were not giving any verdicts. प्रैक्टिकली रिमांड बार करते हुए वो डरते थे, वो अननोन डायरेक्शन करेंगे क्योंकि वो छुट्टियां ले दी गई थी उनसे. एवरी केस कमिश्नर अपील लेवल पे जो विद इन द डिपार्टमेंट जो उसको सॉल्व करना था, मे बी वन रिमांड बैक लेके तो शायद वो सेटल डाउन हो जाता है डीसी लेवल. कमिश्नर अच्छी डायरेक्शन दे पाता, वो तो उनको रोक दिया गया था. कमिश्नर लॉस्ट देयर पावर टू रिमांड बैक क्योंकि लीगल अमेंडमेंट आई थी, उनका अपना हैंडीकैप एग्जिस्ट कर रहा था. सो एवरीथिंग हैड टू मूव अप. कुछ तो के लिए डिस्कशन जब शुरू हुई, जो मीडिया भी बोलता रहा और इनकी जो सराउंडिंग है टॉक ऑफ टाउन जिसको कहते हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें ये आ रहा था कि कमिश्नर डील का होता ही खत्म हो रहा है. Nobody was talking about the pecuniary limitations. Pecuniary limitation जो है वो खुद एक नई चीज को एक जन्म देगी फ्यूचर में. मतलब बाटा प्राइस 200 नहीं लिखना, 199 लिख देना. जी 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 बिल्कुल सर, ठीक है. मतलब आप कह रहे हैं कि 10 मिलियन से 1 रुपया नीचे आ गया है, कहीं और जगह चला जाएगा, 1 रुपया ऊपर चला गया. नाउ थिंग इज कि
thing was the bottleneck. bottleneck मेरी नजर में एक स्टेप से ऊपर मूव कर गया है बस. What the tribunal was doing, the High Court will do that. What the Commissioner of Appeal was doing, the tribunal will be doing that. एक शिफ्ट. दूसरा शिफ्ट यह है कि purpose of the whole mechanism of taxation जो है वो है ultimately what the treasury gets, money for the government. Money for the government जो है इसलिए शायद उन्होंने कहा कि conditional stays तो फिर कभी तो अब तो जैसे एग्जाम्पल दिए कि 24 साल बाद क्या मनी वर्थ क्या रह गई होगी उसकी जो टैक्स लगा भी होगा. किसी तरीके से उसको कहीं रिजॉल्व हो गया होता तो शायद वो रिकंसिलिएशन किसी तरीके से होता है, आर्बिट्रेशन कह लें, मीडिएशन, न्यूमरस मैकेनिज्म हैं इसको रिजॉल्व करने के. शायद वो मैकेनिज्म उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा कॉस्टली कर दें कि लोग हर केस में पता चला किसी को 10,000 टैक्स लग गया तो वो भी अपील दे जाए, उसका कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है ना. वन ऑफ द चीपेस्ट लिटिगेशन कॉस्ट मे बी पाकिस्तान में है प्रॉब्ली. हर केस जो है सिर्फ 1,000-2,000 लगा के ट्रिब्यूनल के लिए एक बैकलॉग क्रिएट कर दिया जाता है. वो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है द ट्रिब्यूनल, द कमिश्नर ऑफ अपील एंड द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट वो उतनी लिटिगेशन क्रिएटेड को शायद कैरी करने के लिए उनको बहुत बड़े स्ट्रक्चर एक्सपैंड करने पड़ेंगे. अभी भी जो हम सुनने में आ रहा है कि ये भी एक टॉप ऑफ टाउन रही है और आप लोग इसको सुनते रहे हैं. अभी वैसे डिफाइन तो इसमें नहीं हुआ जो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ में भी एक जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफिस है या एडवोकेट जनरल ऑफिस है. मैं इतना श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मे बी इट्स अ थॉट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो जो इनकी लिटिगेशन को डिफेंड कर रहा हो इन डिफरेंट फोरम. क्योंकि अभी एज ऑन नाउ हमें ये नहीं पता कि अगर जन करेंगे तो अगले वीक डीआर कौन होगा. जिस बंदे को आज हम कह रहे हैं कि यार ये हमें डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दें डिपार्टमेंट से ला के, अगली दफा आएगा तो नया चेहरा सामने खड़ा होगा. सो जो परपेचुअलिटी या कंटिन्यूटी ऑफ अ प्रोसीडिंग उसके लिए शायद उन्होंने कह दिया कि शेड्यूल होना चाहिए. Adjournments can be indefinite also. मसलन स्टे की हद तक स्टे ले लिया, वो हमने अर्जेंट को स्टेटस दिया हुआ है, आज आप दायर करें 1-2 दिन में लग जाएगा, ये फॉरेन डे प्रॉब्लम को लग जाएगा. उसके बाद वो केस की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है क्योंकि मनी मैटर्स में मनी इज नथिंग, रेस्ट ऑफ पेपर है, एक वर्कलोड है. स्टे मिल गया, पैसे नहीं कलेक्ट होंगे, दोनों साइडों को बंद कर दें एक शेड्यूल. किस हद तक वो अप्लाई होगा, इंप्लीमेंट होगा, नजर तो ये आता है कि मे भी दोनों साइडों को बंद किया जा रहा है. 50,000 जो मैंडेटरी कर दिया गया वो जाहिर डिपार्टमेंट भी फियर कर रहा है उसको क्योंकि डीआर को भी लग सकता है. एज डीम फिट का लफ्ज लिखने से दैट मींस डिस्क्रिप्शन भी दे दी, साथ ही लफ्ज मैंडेटरी लिख दिया तो अनॉमली सॉर्ट ऑफ थिंग विल बी देयर. अब एक इशू जो आया क्योंकि ये 6 मई को जो इमीडिएट इफेक्ट से ये लॉन्च हो गया नया लॉ. अब लोगों के जिनके प्रोसेस शुरू हो चुके हैं लिटिगेशन प्रोसेस सर्व हो चुके हैं ऑर्डर सारा, अब कट ऑफ डेट जो है वो उसमें तो हमने कहा कि इनको ऑब्जेक्शन केसेस लगा के तब तक कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी और शायद कोई किसी जगह से ये चीज जो है सेटल नजर आ जाए. तो ये जो डिसीजन हुई थी ये ऑब्जेक्शन के ऊपर ही हुई थी, ऑफिस ऑब्जेक्शन पे. The appeal was not decided, the stay was not decided, the condemnation was not decided. एक हाँ उन्होंने कहा कि इनको अपील वापस कर दें. अब नो डाउट दिस डिसीजन इसकी कंट्री वाइड रिप्रिकॉशंस कराची, लाहौर हर जगह पे इसकी होगी कि तो इन माय ऑफिस इस्लामाबाद हमें कह रहे कि कर दिया गया लाहौर में because we have more members in Lahore.
बेंचेस भी ज़्यादा लाहौर में, मैकस क्यूरी भी हमने पॉइंट कर दिया, और ट्यूसडे को लार्जर बेंच इसी केस को, और पर्सन टैक्स बार को भी उसमें उनके पैटर्न अमीर साहब हैं, उनको भी उसमें तो होपफुली विल बी असिस्टेड, और हमको ये डिसीजन जो है उस पर, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसको ट्रिब्यूनल हैज टू गिव इट्स पोजीशन आल्सो। वो कुछ ज्यादा कह लें कि किसी बेंच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। Each bench in the tribunal is autonomous as regards to their judicial function. So उसको larger bench के through ही उसको थोड़ा उसको कर सकते हैं। अब रह गई बात की anomalies, और दूसरा है कि ट्रिब्यूनल की वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो कह लगे जब तक हमें असिस्टेंस दूसरी साइड से ना आए, बेंच इज हेल्पलेस टू प्रोसीड फॉरवर्ड। दैट मींस द डीआर साइड एंड द एआर साइड। अब वो एक ही हियरिंग में अगर हम इंसिस्ट कर देते हैं तो द ट्रिब्यूनल हैज एट एंड कि ये इंडेफिनिट जजमेंट नहीं देती, लिमिटेड कैलकुलेटेड देती है डेज के मुताबिक। और दूसरा है कि उसका ट्रेडिशन ये भी रहा है, मेरी राय तक ये रहा है कि अगर एक ही हियरिंग में अगर समझ आ जाती है और शॉर्ट है और सिंगल इशू है तो उसको प्रोलॉन्ग ना किया जाए। रिगार्डिंग वर्कलोड मैनेजमेंट, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं व्हिच हैज नथिंग टू डू विद योर साइड। उसमें ये भी है कि हमारे 10 मेंबर्स हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है उनकी रिटायरमेंट आ रही है। नाउ वी डोंट हैव द रिप्लेसमेंट फॉर दोस 10। लॉ में कोई प्रोविजन ऐसा एक्सटेंशन की एग्जिस्ट नहीं करती अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल प्रोविजन प्रेसिडेंसी से या प्राइम मिनिस्टर साहब दें तो टू मे बी डेविएट फ्रॉम द रूल और लॉ प्रोविजन। एक्सेप्शनल केस करके तो किसी तरीके से but it's a big gap. Appointment of 10 members through one notification, तो उस वक्त तो ठीक लगता है, जब वो ऑफ होंगे तो पता चले 10 इकट्ठे ही एक ही दिन वो जा रहे हैं। The gap they leave behind is I remain with one judicial member in Karachi only one. After those 5 leave, तो वहाँ पे ये पोजीशन है। 6 बेंचेस हमारे फंक्शन है कराची में, उनमें देयर बी वन तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर इन टाइम हुई थी, और 5 जो 3 जून वाला 21 में 3 जून 21 को आई थिंक नोटिफिकेशन हुआ था। उसके तहत हमारे 5 मेंबर्स उनके टर्म इन ऑफिस खत्म हो जाएगी। सेम 5 मेंबर्स हमारे लाहौर, उनका कैरियर भी जो है यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फायर हो रहा है उसके। So Lahore I will have only 3 GMs. So these are the logisticals we fight with. Next हमारा थ्रू ये रहा है कि if the thing is कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसको एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं है ट्रिब्यूनल। We never had any research officers, और मे बी आप लोग सबको पता होगा कि the limited sources we have कराची दे रहा है। Since हाई कोर्ट उनका डिफरेंट पोजीशन है, लाहौर हाई कोर्ट ने डिफरेंट पोजीशन ली हुई, इस्लामाबाद की डिफरेंट और पेशावर की डिफरेंट है। सो पेशावर एंड लाहौर डू नॉट गिव जुडिशियल अलाउंस बिकॉज़ दे आर नॉट अ कोर्ट। आप सरकार के सरकारी अफसर कह रहे हैं मेरी बाई दिस जो अफसर पढ़ रहे थे SRO कह रहे हैं हमारा सर्विस अपॉइंटमेंट रूल्स जो है बने, ठीक है, इसके वाले से तो मे भी ये क्या एक सर्टेनिटी तो दे ना कि बंदे को मिलेगा क्या। मैं शायद एक्सेप्शनल एक आदमी हूँ जिसकी लाहौर में तनख्वाह ज्यादा थी, इस्लामाबाद में आने से कम हो गई। जुडिशियल अलाउंस खत्म हो गया, उधर मुझे मिलता था। तो मे भी ये जो काउंटर मेंबर्स का भी
उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको नाम ना ये जुडिशियल अलाउंस टाइप का नाम ना दें, इसको क्या ट्रिब्यूनल अलाउंस, कि जो ट्रिब्यूनल में आएगा उसको मिलेगा. So non-clarity on the institutional structure is still a challenge for me as a chairman या हमारी जो भी future में deliberations होंगी. लेकिन this act मेरी नज़र में I think now it's required act. जैसे हमारे member साहब भी he was quite candid, admit किया कि इसमें numerous anomalies हैं जो कि finance act के through इनको अगर correct कर लिया जाए, वो अब आधे से ज़्यादा काम जो है वो तो आधे से ज़्यादा सारा काम ही किया जाता है, क्योंकि the tribunal has no role in the law making. We have zero law. This is all done at the FPR. So Finance Act is their domain. Finance Act is the tribunal domain. जहाँ तक पेनल्टीज का तल्लक है, पेनल्टीज में जिसमें सिर्फ एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि हमने रिसेंट अमेंडमेंट को पढ़ने के बाद एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मेरी इसमें गुजारिश ये है कि इन जो आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन क्या है, हम उसके भी मतलब हमारे सीनियर हैं जैसा तो उस पर भी हम करें. मेरे भी जेब में कुछ सलूशन है, मैं एंड पे उस पर सजेशन दूंगा पहले हमारे सीनियर. और बेसिकली बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें देनी है. सजेशंस तो अपनी जगह है, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लें कि जो इश्यूज अभी आने हैं और ट्रिब्यूनल को भी जो एड्रेस करने हैं वो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिव इस पूरे जो हमें लग रहा है अपेरेंटली वो ये था कि जितना भी जो भी टैक्स अथॉरिटीज ने जिसको कहते हैं टैक्स मंडा है वो रिकवर कर लें किसी न किसी तरीके से, नॉट ऑन मेरिट बट फोर्सफुली. और ये सारा ऑब्जेक्टिव लग रहा है अदर देन एक्चुअली लुकिंग एट, क्योंकि जब वो एक ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि ट्रिलियंस ऑफ टैक्स डिमांड जो है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन विदाउट लुकिंग एट कि व्हाट इज द मेरिट ऑफ दोस टैक्स डिमांड्स उसको रिकवर कर लेते हैं. इसमें इतना मेरे ख्याल में जो पूरा का पूरा ये बनाया है सिस्टम, इट हैज, जैसे मैंने मेंबर साहब को भी कहा था, इट हैज द इम्प्लीकेशन टू टेक डाउन द एंटायर टैक्सेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, जिसका बेड़ा गर्क कर देगा. अभी जब अब आप देखेंगे कि 16 जून क्यों डेट रखी गई, अब 1 जुलाई से क्यों नहीं कर दिया गया. अब जो आपके 30 दिन का जो स्टे है वो भी आपका डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से जो एक चलेगा, अब वो सारा का सारा स्टे भी खत्म हो जाएगा. आप तक जब वो ऑर्डर्स पहुंचेंगे वो आपने भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को देखना है, उसकी अपील नंबर लगाएंगे, उसका सब कुछ करेंगे, और आपके पास तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी नहीं है जो ये अपील्स आपके पास आएंगी. तो 16 जून और 30 जून के दरमियान मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में गदर मचेगा ऑफ रिकवरी, और पता नहीं किस तरीके से इसको हम डील करेंगे. आप कैसे इसको स्टे देंगे, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे. तो 16 जून इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट. व्हाई दे चूज 16th of June, that was not required, लेकिन उन्होंने ऐसा किया. तो ये भी हमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैक्ट्स का. फैक्ट्स उठाकर वो हाई कोर्ट में ले गए. ये हमेशा से एक थ्रू आउट एक रहा कि फैक्ट्स तक आप ट्रिब्यूनल में डिसाइड करते हो. क्यों? क्योंकि आपके जो अकाउंटेंट्स हैं, जो कि एक अकाउंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्रैक्टिस, और उसके अंदर टैक्सेशन के लिए भी अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो फैक्ट्स को आप अगर एक अकाउंटेंट बेहतर तरीके से शायद मैं विदाउट टेकिंग एनी ड्यू क्रेडिट फ्रॉम द लॉयर्स, लॉयर भी बहुत लाइक होते हैं, खालिद साहब जैसे शायद अकाउंटेंट ज्यादा है और लॉयर कम ही अपने आप को अकाउंटेंट ज्यादा कहते हैं, लेकिन एक अकाउंटेंट का वहाँ उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जी एक has been a judge of high court, जी has been a district judge. जी जी सर फाइनेंस के आप एंट्री आई ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एंट्री मींस फाइनेंशियल साइड, then cost and management
fact, except one entry, all other 4 entries are financials. Department के AMs, the officers and plus chartered accountant and fund. So all these are the people who accept. जी Lawyers के लिए सिर्फ एक है. सर वो आपकी तरफ है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू. टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको फैक्ट को उठा के भी, लेकिन एक पूरी आपने अपील का फोरम खत्म कर दिया. लॉयर तो जाके हाई कोर्ट में भी पेयर होंगे, अकाउंटेंट्स के लिए तो अब सिर्फ एक रह गया और हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर. और फैक्ट्स को अगर आप देखें तो फैक्ट्स आप कमीशन को अपील से उठ के आप छोटा जो केस है वो आपका सीधा हाई कोर्ट पे जाएगा, विच इज नॉट रियली. अब कमीशन को आप लोगों ने ये जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि यार मेरी मेहरबानी है 122/9 पे जल्दी स्टार्ट होती है तो 122/9 का नोटिस आ जाता है. दैट मींस और प्लस कोई लिमिटेशन भी आ गई जी. अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिटी जो असल इश्यू था, जो आपने भी जो पॉइंट आउट किया, क्वालिटी ऑफ असेसमेंट को एड्रेस करने की जरूरत थी, वो इसमें बिल्कुल कहीं आपको नजर ही नहीं आता. ना तो अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट नजर आता है. अकाउंटेबिलिटी हमारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो चुकी है. परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी जो है ना वो एक लेकिन जो असल वो जुडिशियल मेंबर्स को और चेयरमैन को अगेंस्ट प्रोसीड अगेंस्ट भी कर सकते हैं अगर वो इनएफिशिएंट है या मिसकंडक्ट है. ये एक नई प्रोविजन है. सर आपकी तो आगे, लेकिन जिसने नरेट किया, जिसका जो ओरिजिनेटर है, उसका क्या किया आपने? उसका आपने कुछ नहीं किया. आप उसको उसी तरीके से छोड़ के कैसे होगा? अब आप अगर 50 बना देंगे तो क्या गुजर खान में जिसका केस हो भागा भागेगा? You have to take these benches to each and every important city of this country. थोड़ा सा आइडिया आप सब ने जिक्र किया सरदार पर कि जी वो ये कि 15 पहले 20 बेंचेस हैं हमारे, वो 35 पे लेके जाएंगे 50-50. सर पहले अब ये जो साथ ही हाफिज साहब ने इसका जवाब भी दे दिया था कि हमें लॉजिस्टिक्स बैठना कहाँ पे है, स्टाफ कौन होगा, ये होगा. तो पहले 3 सिलेक्ट तो आप करें, फिर आपने 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के रखने, फिर उन्होंने एडवर्टाइज करने अखबार में, फिर वहां से एप्लीकेशन आएंगे. आप 15-16 दिन तक कैसे करेंगे? अभी तो कुछ दिन है वैकेंसी तो ना, तो उनको रिटायर होने देना नहीं, उसके बाद वैकेंसी आएगी वो भी 15 की शायद सैंक्शन के लिए फाइल चलेगी मिनिस्ट्री फाइनेंस, लेकिन वो फिर भी कैडर सैंक्शन करना है, ये भी सैंक्शन करती है, हर चीज करती है. ग्रेड 22 का जी. और एक जो आखिरी बात मैं करूंगा, जो आप 90 दिन की में आपने करना है, 90 दिन की आपने एक्सटेंशन लेनी है, 180 दिन के बाद क्या होगा बताएं. ये लॉ इज साइलेंट. एक डिपार्टमेंट में भी वो हमेशा रही है बोर्ड को कोऑर्डिनेशन मिले 74 सेक्शन जो है आपका, लेकिन वो तो मैक्सिमम आपने 90 दिन आपको कोऑर्डिनेशन जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को फाइल, लेकिन वो भी 90 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते आप लॉ के मुताबिक. तो ये इसके बाद क्या होगा? इट हैज टू बी डिफाइंड इन द ऑर्डिनेंस, इट हैज टू बी डिफाइंड इन द लॉ. नहीं, आपको पता हो सकता है कि वो एक्सटेंशन जो है वो 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती. यहाँ इसका मतलब 90 डेज दे दिए जो है, इससे ज्यादा फिर एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी. और लॉ में वो लिखा ही नहीं कि अगर नहीं होगी तो होगा क्या? कॉन्सिक्वेंस नहीं, कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो 100% ये जो 90 दिन या 180 दिन है ये डिक्लेरेटरी मैंडेटरी है ही नहीं. ये ऑलरेडी सेटल इशू है. हम सुप्रीम कोर्ट के जहां कॉन्सिक्वेंस नहीं दिए गए वहां जो है वो प्रोविजन हमेशा डिक्लेरेटरी थी, एक्सेप्ट जो जजमेंट आई है ना इस पर सेक्शन 36 और 11 वो इसलिए आई है कि वहां क्योंकि असेसमेंट होनी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अपना जो लिमिटेशन है ये मैंडेटरी. अदरवाइज जहां असेसमेंट इन्वॉल्व ना हो तो वो मैंडेटरी होती ही नहीं. लेकिन लॉ तो डेफिनेशन करना सर. हाँ, लॉ डेफिनेशन मैंने तो पहले कहा उसमें पहले लिखा था कि डीम टू हैव बीन डिसमिस्ड, वो जो बड़ा लॉफिंग सिचुएशन थी कि वो लिख दिया, हालांकि वहां होना चाहिए था कि डीम टू हैव बीन एक्सेप्टेड. नहीं वो आगे आ जाएगा. लेकिन आई होप कि जो मैं सवाल करूंगा इंशाल्लाह काफी सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह. सर पर्टिनेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वन बाय वन अगर लेके चलें. पहला सवाल है, जैसे आपने कहा कि May 3 जो है वो इफेक्टिव डेट है, चेयरमैन साहब ने फरमाया कि May 6 जो है इफेक्टिव डेट है.
सर जो मे 3 की इफेक्टिव डेट है, आई एग्री क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के मुताबिक जो जिस डेट को प्रेसिडेंट एसेंट देता है वो इफेक्टिव डेट होगी। जी बिल्कुल, इसलिए मे 3 बनती है। इसलिए 6 नहीं है, जी अच्छा, लेकिन चेयरमैन साहब ने मे 6 का जिक्र किया और मे 6 के ऊपर सर ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है। नहीं, वो गजट पब्लिश हुआ 6 को, जी बिल्कुल। लेकिन एसेंट जो है एक्ट में बन गया था 3। अब मेरा सर सवाल ये है कि एज ए टैक्स एडवाइजर या एज ए टैक्स पेयर जो इंफॉर्मेशन आई वो मे 6 से पहले मौजूद ही नहीं थी, ठीक है? तो इसका मतलब है मे 3, 4, 5 और 6 को लोगों ने अपीलें भी फाइल की होंगी और हो सकता है रॉन्ग फोरम के ऊपर भी फाइल की हो, तो वो जो अपील्स हैं उनकी टाइम लिमिट्स भी अपनी अपनी जगह पर थी। तो इसका मतलब है कि कानून करने जी वो ये मतलब कंजर्वेशंस की जरूरत पड़ेगी वो तो ये पहले कौन सी करते हैं? जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरा जो सवाल फोरम का इशू भी है ना, हाँ जी, फोरम का भी इशू है लेकिन सफिशिएंट कॉस्ट पर नजर आ रही है ना जी। इवेंट फॉर फोरम एंड देन ड्यू टू दिस नॉर्मली जो ये क्लैरिटी कंट्रोल हो जाएगी ना। जो है वो असल चीज जो है वो सब जो कह रहे हैं कि हमने लार्जर मैन मिला दिया है विद रेफरेंस टू फोरम कि क्या 3 के ऑर्डर के लिए फोरम कौन सा होना है, ट्रिब्यूनल होना है कि हाई कोर्ट होना है, ये अब उस पर बल्कि लॉ में अगर बेंच बन गया तो लॉ भी माशाल्लाह सारे अच्छे से वकील बैठे हुए जी असिस्टेंस आ जाएंगे। अगर मैं इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग चाहेंगे ना कि कोई असिस्टेंस हमारी तरफ से रिक्वायर्ड हो इस्लामाबाद से, वी आर रेडी फॉर दैट। वो वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स की है और असेसमेंट का जो वर्ड है वो भी लॉ में डिफाइंड है, ठीक है? तो ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये प्रोविजन सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर्स के लिए है, जो बाकी ऑर्डर्स हैं मसलन रिकवरी ऑर्डर्स है, प्लस के 161 का ऑर्डर है, 172 का ऑर्डर है, उनके लिए पेनल्टी का ऑर्डर है, उनके लिए ये जो पेक्यूलियरी जुरिसडिक्शन वाली प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये बात है कि वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स का वर्ड है, इसका मतलब है। दूसरी बात ये जब ये वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स है, इसमें एक और भी फर्दर सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है, एक पार्टी है उसका ₹1 का लॉस था, यहाँ मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं जी एक उसको लिंक करो 127 से और जी जी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो 161 जो है वो भी असेसमेंट है और एंट्री का सर रिकवरी का ऑर्डर है, सस्पेंड सर 161 और 205 को मिलाकर पढ़ें तो वो पेनल्टी का असेसमेंट ऑर्डर है। 165 नहीं है सर, दुरुस्त है, लेकिन उसमें अगर आप लफ्ज में आगे जाए ना फर्दर असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट नहीं है ना, तो नहीं है। नहीं मैंने अभी मामला है हमारी दरखास्त ये होगी कि ट्रैक्टर इसको भी टेकअप कर लें जो अपने लार्जर बेंच मैं वैसे समाज कर आपकी बात को मेरी नजर में जो मैंने पढ़ा है जहाँ पर असेसमेंट नहीं है उसका प्रोसीजर अभी भी ऐसे ही रहा है कि ट्रिब्यूनल मेरी ये तो सर ट्राइब्यूनल के सामने 26(1) भी जी साहब लफ्ज जरा देख लें सर, लफ्ज है ये मैं 43A पढ़ रहा हूँ। Commissioner appeal shall lie with the value of assessment of tax। अब जो 161 का है वो भी टैक्स है, जो पेनल्टी है वो भी टैक्स है, टैक्स की असेसमेंट और टैक्स सर असेसमेंट और टैक्स सर वो लोग रिडंडेंट हो जाएगा ना असेसमेंट का लेकिन डिमांड ऑफ टैक्स नहीं आप एक मिनट जस्ट अभी सर एक मैं आपकी बात लफ्ज आपकी ये पूरा पढ़े ना पूरा पढ़ाते हैं सर, ये बताएं 127 के अंदर एक स्टार्ट हो मैं गाली करने लगा पहले छोड़ दो 131 के एक सेकंड छोड़ के बोल लेना अहमद का पता चला कि मेंबर करना लफ्ज क्या है where the value of असल लफ्ज क्या है वैल्यू where the value of assessment of tax तो आप सिर्फ असेसमेंट में फंस गए वैल्यू और असेसमेंट ऑफ टैक्स हम आगे बढ़ते हैं। इसको लार्जर बेंच एड्रेस कर देगा सर सर अभी तो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ठीक है लार्जर बेंच एड्रेस कर देगा कि इसके अंदर क्या बनता है क्योंकि ये सब सबके लिए नहीं ये मेरा ख्याल है कि यूएन में नहीं आता इसको करना अच्छा ये नहीं कर सकते इंटरप्रिटेशन तो करेंगे ना हाँ अब ये तो उन्होंने ले ली है तो इंटरप्रिटेशन तो करेंगे असेसमेंट का सवाल ये है कि वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स का जिक्र है ये बताइए सस्पेंशन जो है सस्पेंशन वो कहाँ जाएगी तो ट्रिब्यूनल वो तो आगे रह जाएगी वो तो टैक्स रिफॉर्म हो जाएगी मसला वही है। नहीं मसला कोई नहीं मैं तो सिर्फ अदर असेसमेंट ऑर्डर है वो तो सारे जाएंगे ये नहीं आया ट्रिब्यूनल लिमिटेशन जो है सर और 10 million
ये क्वेश्चन है। इन पे एक वर्डिक्ट इधर से आ रहा है, एक इनका है। जी ऐसे एक आपने देना है। एक आपने ये कह रहा है कि सिर्फ रिकवरी है, जी लेकिन उसका ऑर्डर पास होता है, दैट कवरी उसके अंदर 161 में लिखा हुआ है रिकवरी विल बी एज इफ इट इज ऑन एन असेसमेंट ऑर्डर। ये कमांड नोटिस जाता है, 161 में कमांड नोटिस जाता है, हर चीज जाती है, तो कैश बन सकता है। क्योंकि उसमें ना दो साल की इंग्लिश चलने के साथ नहीं लगी पाकिस्तान में, तो ये सर मेरी अलग सुनने तरफ तो आपको बात नहीं क्लियर होगी। 131 अपील टू ट्रिब्यूनल स्टार्ट होती है सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A। 127 अपील टू कमिश्नर अपील के अंदर ये लफ्ज ऐड नहीं है, ठीक है। अब आ जाए आप हाई कोर्ट, सॉरी तो मुझे एक और प्रोविजन पड़ी थी उन्होंने, इसमें कहा था कि कमीशन अपील का लफ्ज ट्रिब्यूनल वाली अपील टू ट्रिब्यूनल के अंदर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ अपील। वो कौन से ऑर्डर है कमिश्नर ऑफ अपील के जो पेक्यूलियरी जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आएंगे? इसका मतलब हुआ नॉन पेक्यूलियरी जजमेंट्स के जो फैसले हैं वो इस सीक्वेंस से चलेंगे, वो पुराने सीक्वेंस से चलेंगे, ऐसे ही। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये हमारा पॉइंट हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। ये एक एनोमली के हवाले से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक फर्स्ट ईयर टैक्स पेयर है और उसके पास 2 अरब रुपए के लॉसेस थे। ऑफिसर ने पूरे 2 अरब रुपए के लॉसेस डिलीट करके 100 मिलियन की इनकम बनाई और उसके ऊपर 30 मिलियन की डिमांड या 10 मिलियन की डिमांड क्रिएट कर दी। तो एक्चुअली उसमें जो टैक्सेबल इनकम में एडिशंस किए वो 2 अरब रुपए से ज्यादा किए, और एक जो दूसरा टैक्स पेयर है जिसके पास लॉसेस अवेलेबल नहीं थे उसकी टैक्सेबल इनकम 100 मिलियन या 200 मिलियन बनाई और उसके ऊपर 40 मिलियन की डिमांड क्रिएट कर दी। अब एनोमली ये है कि इसका मतलब अगर मैं सिर्फ टैक्स के लफ्ज को लेके जाऊंगा तो जिसमें 2 अरब रुपए के एडिशन हो रहे हैं वो तो जा रहा है कमिश्नर अपील के पास केस, और जिसमें 200 मिलियन के एडिशन है वो जा रहा है ट्राइब्यूनल के पास केस, ठीक है। तो ये दोनों में एक एनोमली है। इसको छोटी डिमांड में हाईकोर्ट जल्दी पहुंच जाएगी हाईकोर्ट, लेकिन वो बड़े एडिशन है। तो मतलब ये पहला है, ये बात कुछ अजीब सी लगती है कि इस तरह से शायद नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, जैसे एक आपने क्लैरिफाई तो किया है लेकिन लॉ में ये बात क्लैरिटी से लिखी नहीं हुई कि अगर टोटल 25 मिलियन की डिमांड हो और फिर टैक्स ऑफिसर जो है उसे 25 से 27 मिलियन कर दे तो क्या डिफरेंशियल वो वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स आ जाएगा, या जो वैल्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स है वो पूरे 27 मिलियन है, मतलब उस पर जो पूरी डिमांड की है। ये लॉ में क्लैरिटी नहीं है, इसके ऊपर भी क्लैरिटी की जरूरत है। फिर अगेन जैसे सेल्स टैक्स के ऑर्डर्स में अक्सर होता है कि डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी जो है वो साथ साथ होता है, अब और बात और कैलकुलेशन भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे सर ने कहा कि वो 1 रुपया कम करके बाटा रेट लगा दिया लेकिन साथ लिखा हुआ डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी भी है, तो इसका मतलब है वो हो सकता है। अब वो कैलकुलेशन कब होगी और फिर उसके बाद वो 10 मिलियन से बढ़ गया तो क्या होगा और नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी एम्बिग्विटीज हैं जिनको ऑनरेबल ट्राइब्यूनल के हम समझते हैं कि उसमें एड्रेस करने की जरूरत है। मैं सच कहता हूं एक और एनोमलीज है वो आइडेंटिफाई करता हूं क्योंकि क्वेश्चन शायद यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होंगे, मैं सिर्फ एनोमलीज अगर इजाजत हो तो आइडेंटिफाई कर दूं। इसी तरह सर एक एनोमली इस लॉ के हवाले से ये कि 15 जून को ये लिखा गया है कि जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड वाले केसेस है, थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले केसेस है, वो 15 जून के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास। अच्छा, लेकिन अगर वो 15 जून से पहले कमिश्नर अपील डिसाइड कर देता है, ठीक है, तो उनके बारे में लॉ में स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया कि उनके साथ सलूक क्या किया जाएगा। वो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। सर 20 मिलियन से ज्यादा है सर, 20 मिलियन से ज्यादा है। हाई कोर्ट में जहां पर लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के पास रेफरेंस आने का जिक्र वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप वहां पे लिखा हुआ है कि जो 20 मिलियन से नीचे है ना वो हाई कोर्ट के पास रेफरेंस की है, इसके मुताबिक रेफरेंस की प्रोविजन नहीं लिखी हुई वहां पे। अपील के ऑर्डर के 126A का 2 जो है 126A का 2 जो है वो सिर्फ एड्रेस करता है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि 120 जो 20 मिलियन से ऊपर वाले ऑर्डर्स हैं अगर वो 3 मई के बाद कमिश्नर भी डिसाइड करता है, ऑफिसर डिसाइड करता है तो फिर तो है कि ऑफिसर डिसाइड करेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन इसके बारे में सर क्लैरिटी नहीं है। ये जरा क्लैरिटी इसको भी देखिए, ये भी लिखा कि न्यू ऑफ है तो उसको ऑर्डर नहीं पास करना, कमिश्नर बिल्कुल नहीं पास और लिस्ट बना के तो आगे जो भी कट ऑफ करता। आपका ये और भी फोटो में कोई आएगी इंस्ट्रक्शन सर इसमें सवाल है ट्रिब्यूनल ने बहुत कुछ करना है, जिसमें
एक्चुअली बोर्ड ने करना है, बोर्ड ने इसके ऊपर बोर्ड को दे दीजिएगा। अच्छा सर, इस वजह से आपने समझाया कि कमिश्नर बिल ने कुछ नहीं करना है इनके ऊपर, तो फिर 15 जून की डेट करेगा, तो फिर 15 जून की डेट में देखिए लिमिट नीचे है तो करते लिमिट के ऊपर ये तो आपकी सजेशन है ना, सारे बैठे ऐसी तो नहीं है सर इसी एनालॉजी के ऊपर जो 20 मिलियन से कम वाले केस ट्रिब्यूनल में पड़े हुए हैं वो क्या उनको हाईकोर्ट नहीं भेजने चाहिए? अगर CIRA ने 20 मिलियन से ऊपर वाले केस ट्रिब्यूनल को भेज देने, तो इसी एनालॉजी के ऊपर वो लिखा नहीं है। मैं एनालॉजी की बात कर रहा हूँ सर, मैं पता है मुझे लिखना नहीं, मैं एनालॉजी की बात कर रहा हूँ कि क्या ट्रिब्यूनल को भी ये 20 मिलियन से ऊपर नीचे वाले केस उनसे हाईकोर्ट को भेजने चाहिए? नहीं, इसलिए कि वो तो एक रेफरेंस है, वो तो लाइव होना है, वो तो लाइव वहाँ स्टैंड ट्रांसफर हाईकोर्ट में नहीं हो सकता, वहाँ वो तो फॉर्मेलिटी होती है। अपील का फॉर्मेट और चीज है, लेकिन रेफरेंस के लिए तो जब तक आप फाइल नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट में तो नहीं ट्रांसफर हो जाता। ये तो एपलेट जुरिडिक्शन के हवाले से होता है, यहाँ अगर लिमिट होती तो फिर आप ये कह सकते हैं। नए सेक्शन लिखा है सर वहाँ सेक्शन का देखा लिखा हुआ है ना, कमिश्नर अध्यक्ष की पावर ही जो 20 मिलियन से नीचे है ना, सर वो तो नई इंस्टीट्यूशन की पावर है ना, जो ऑलरेडी उसके पास है वो तो उसने डिसाइड करने हैं ना, वो डिसाइड करेगा ना। 20-25 दिन का पीरियड है, समझ लिया आप, 15 तारीख तक का जो पीरियड है उसमें तो जो उसके पास यहाँ उन्होंने यहाँ तो सेक्शन का जिक्र करते हैं, यहाँ उन्होंने सिर्फ लिखा है ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल आर कमिश्नर एज अ केस में, या तो अमाउंट ऑफ टैक्स का तो नहीं करा, जैसे उन्होंने वहां पे लिमिटेशन डाली थी यहाँ भी डाल देते, ये नहीं है, इसलिए ये अनोमली नहीं है, मैं जो क्लियर हूँ इसकी। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा मजीद अर्ज करूंगा। 126(8) रूल्स होता है, पहला जब वहां पर ये लिखा हुआ है a person or as the case may be officer of inland revenue agreed by order of the commissioner of police in clause cases under clause A of subsection 1 may file a reference before high court in accordance with section 133। तो यहाँ से वो रेफरेंस अराइज हो रहा है और वो 1A के लिए है जो कि 133 में फाइल होगा, यहाँ से अराइज हो रहा है। यहाँ से जो 20 मिलियन से ऊपर वाले हैं, जो क्लॉज B वाले केसेस हैं, उनका रेफरेंस 126A से अराइज नहीं होगा। ये इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। इसी साल मैं कह रहा हूँ आप 133 को पढ़े ना, जहाँ रेफरेंस फाइल होना सर, वहाँ 126A का तो नहीं है। चलिए वो एक मामला डिफरेंस ओपिनियन का है, लेकिन पॉइंट आउट कर दिया ना, पॉइंट आउट कर दिया। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसके अंदर जो अगला पॉइंट आउट करना था सर, वो क्वेश्चन है पार्टिकुलरली सर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फोरम, तो कैन इट बी अ फाइनल फैक्ट ऑफ फाइंडिंग अथॉरिटी? इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसकी वायरस को चैलेंज किया जा सकता है? मैंने तो पहले मैंने पहले कहा कि इसको मैंने इतना टच नहीं किया, लेकिन जिस कुलीन को भी हाथ आप लगाएंगे वो चैलेंज होनी ही होनी। अच्छा सर, इसके बाद दो प्रोविजन है, एक उन्होंने लिमिट कर दिया कि 20 मिलियन तक के ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। अब उसमें जो ट्रांजिशन में अगर कोई वहां पर पड़े हुए ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसमें कोई ट्रांजिशन प्रोविजंस दी नहीं गई, छूट गई। अच्छा ये मेरा सेविंग क्लास या इस किस्म की कुलीन वहां पड़ा हुआ है, उसने उसको डिसाइड करना है। 124 में डिसाइड करेंगे क्रिमिनल के पास 20 मिलियन से नीचे वाला केस है, तो उसका मतलब क्रिमिनल डिसाइड नहीं करेगा, कमिश्नर के पास 20 मिलियन से ज्यादा वाले केस है वो डिसाइड करेगा, हाँ 15 तक करेगा, 16 तक ऑनवर्ड नहीं कर सकता, ऑनवर्ड नहीं कर सकता। तो 124 मतलब उसकी अपील हाई कोर्ट में चली हाँ वो तो डेफिनेट उस पर तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अच्छा सर, जो एसओईज के बारे में आपने कोई डिटेल से बात की है, एसओईज के बारे में अब वहां पर ना एक जो सेक्शन इंसर्ट हुआ है, वहां पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट इज एन एसओई, it shall withdraw any and all such pending litigation and cases immediately and mention the details thereof in the undertaking। तो क्या इससे ये मतलब निकलता है कि जो आज की डेट में पेंडिंग लिटिगेशन है वो भी इनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, वो भी सारी विड्रॉ करेंगे, और वो अगर सबसे खतरनाक मैंडेट्स के हवाले से तो ये राष्ट्रीय एक्ट है, ठीक है, उनका तो बिल्कुल कहते हैं ना सत्यानाश कर दिया गया, उनके बाद सारी उनका सारा कुछ खत्म हो गया, वो समझो 2 टैक्स लगे वो कंफर्म हो जाएगा।
कल ने नया किया। अच्छा सर, एक इसके साथ अदर देन SOE, लेकिन जो 126A में पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन वाला है वहां पे अदर देन SOE के अल्फाज नहीं लिखे, यानी ट्राइब्यूनल वाली जगह पर तो अदर देन SOE लिखा गया है, लेकिन जो कमिश्नर अपील की जुरिसडिक्शन है, जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, वहां पर अदर देन SOE के अल्फाज नहीं लिखे। तो क्या इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन वाली प्रोविजंस है वहां पर SOE के पास अभी भी राइट मौजूद है, या ये जो आखिरी क्लॉज है जो अभी हमने पढ़ी है वो राइट कर नहीं सकते? ये ओवरराइड स्पेशल प्रोविजन है उनके को वो नहीं दे रहा वहां मेंशन में, और उससे कम वैल्यू में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि अपील है ही नहीं। क्वेश्चन पीछे से भी ले लें। और एग्जिस्टिंग केस मॉनिटरी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट आई है उसके बाद अगर कमिश्नर के अपील के पास पड़ा हुआ है तो क्या ऊपर 80,000 पे जाएगा या 80,000 वाला हाई कोर्ट जाएगा, जैसे रीप साहब कहते हैं? तो वो ऐसे नहीं है कि करंटली आप देखें जो हमारे केसेस 3 मई के बाद फिक्स होते हैं कमिश्नर अपील के पास भी, तो उन्होंने भी काम रोका नहीं है, कर रहे हैं वो अपीलें हर्ट कर रहे हैं। तो वो जो चीज जो केस आपका 3 मई से पहले का उस दिन ये ला नहीं आया था, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर की, वो उसी ला के तहत उसको सारा उसका प्रोसेस होगा। और 3 मई के बाद जो है वो नया ला जब आ गया तो जो ऑर्डर सर्व होंगे उनके ऊपर होगा। अब 2 साल बैठे एक एक दे देते हो, आपने डेट ऑफ सर्विस को जरा गौर से देखते हैं। ये मेरा